So first of all, we will be discussing thymus gland. Just a minute. Let me minimize this. बच्चों कोई मुझे बताओ कि डिसेक्शन तो होता नहीं है आज की डेट में, तो एनाटॉमी में डिसेक्शन किए हुए पिक्स या वीडियोस दिखाते हैं तुम लोगों को? चलो, I hope that all of you must be knowing that what is mediastinum. Okay, just a minute. So we should know the anatomical position where the thymus gland is found. So thymus gland is situated in the mediastinum. Okay, it lies exactly above the heart and partly in the neck. Okay, in adult जिसमें हम dissection करते हैं, in them you will see very small thymus gland. However, it is much more developed and much more larger in size in case of children. So, and what is thymus gland? It is a primary lymphoid organ where T lymphocytes develop and undergo maturation. इसका main function यही है कि the development and maturation of the T lymphocytes. Okay. I hope you all are familiar with the histology. Whenever सारी की सारी pictures हालांकि histology में ऐसी ही दिखाई देंगी, but you should be, you know, you should always try to focus कि उसके अंदर कुछ important tissues होते हैं. Important, there are certain cells which are very particular to each and every organ. Here also, when we take a histological section of thymus, we can see different lobules. यहाँ पे ये जो criss cross ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को. So these are different lobules of the thymus gland. Then each lobule will be separated by interlobular connective tissue, and there will be a cortex and medulla. Cortex और medulla को याद करने का यही है कि जो outer section होता है, जो भी अगर lobule है कोई, तो वो cortex होगा, और बीच वाला जो portion होगा, जैसे यहाँ पे 3 number is the cortex and 4 number is the medulla. Okay, yeah, this is just the functional anatomy I am telling you. We are more concerned with the function of the thymus gland. So we can say that each follicle of the thymus is organized into 2 parts: the cortex, which is densely packed with the immature T cells called thymocytes, और cortex में अपने epithelial cells भी होंगे, ठीक है, और उसके अंदर thymocytes होते हैं. And the medulla, जो 4 number पे मैंने पीछे दिखाया था, medulla is a place where the matured lymphocytes will be there. Okay, then I haven't shown you the Hessel's corpuscles. It is also, अगर histology, ये तो एक थोड़ा सा यानी मतलब this is the histological section which we see in the microscope. और अगर उसको हम oil immersion में लेके जाएंगे 100x में, जहाँ पे हम DLC करते हैं, तो there you will be able to see the Hessel's corpuscles. ये वाला part आएगा anatomy में. Now we come to the physiology of this organ. So the thymus gland, जैसे मैंने बताया, at birth, before puberty, it is larger in size as compared to adults. Okay, so the average weight of the thymus gland at birth is about 15 grams, and then by puberty it becomes almost 35 grams. बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक थोड़ा बढ़ता रहता है. Then at
post puberty, because of the higher circulating amount of the sex hormones, it get degenerated or involution take place, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है. When you are a full-fledged adult around 25 years, it will be of 25 grams, and then in 60s it is 15 grams. Okay, so involution take place post puberty. Now the main function of thymus gland is the maturation of the T lymphocytes. So we can say that thymus gland is basically the school. जैसे हमारा स्कूल होता है ना, it is the school of T lymphocytes. अब T lymphocytes को वहाँ पे T lymphocytes are of different types, you know, T helper cells, T cytotoxic cells, T suppressor cells. Okay, that maturation and that development takes place in the thymus gland. Okay, and ये मैं अभी बताता हूँ कैसे इसका एजुकेशन होता है. So there are as we are discussing the thymus gland, there are certain kind of hormones which are produced by the thymus gland, and they are thymolene, thymopoietin, thymosin, and thymic humoral factor. You should you know, जहाँ पे thymus आएगा, obviously you would be able to identify that these are the hormones which are produced by the thymus gland. अभी फिलहाल याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. 3 or 4 types of hormones are produced by thymus gland. Okay, जहाँ पे thymus आ रहा है, तो ये याद रखना है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. अब क्या होता है, यही है हमारे सारे स्लाइड का जो पूरा फॉर फिजियोलॉजी and for the knowledge also, you should know that in the thymus gland T cell education is taking place. अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान रख के सिर्फ 5 मिनट्स मेरी बातें सुनना, क्योंकि इस वाली स्लाइड में पूरा का पूरा नहीं है, एंड आई डोंट हैव दैट slate with me so that I can explain you. See, we know that B cells and T cells are formed in the bone marrow. ठीक है, बोन मैरो से अब थाइमस में जब वी नो दैट लिम्फॉइड और माइलॉइड सीरीज बनते हैं, उसमें बी सेल्स टी सेल्स बन रहे, प्री बी सेल्स प्री टी सेल्स. ठीक है, नाउ दीज प्री टी सेल्स हैज टू गो टू द थाइमस ग्लैंड फॉर द मैच्योरेशन. तो जाएंगे कैसे? वी नो दैट ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है हमारा थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन बेसिकली या थाइमोपोइटिन, ये जो थाइमस ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, these are chemotactic agent for these precursor T cells. Okay, so ये क्या करेगा, जब ये रिलीज होंगे थाइमस ग्लैंड से, the pre T cells which are formed in the bone marrow, they get attracted to the thymus gland under the influence of the hormones which are produced by the thymus gland. Okay, so when they reach this thymus gland, तो दे आर प्री टी सेल्स. अब प्री टी सेल्स क्या आएंगे, इसमें कोई भी अभी रिसेप्टर्स नहीं है, बट प्री टी सेल्स आर प्लूरिपोटेंट सेल्स. प्लूरिपोटेंट सेल्स वो होते हैं जिसमें से बहुत सारे सेल लीनिएज बनती है आगे जाके. ओके, नाउ अब ये थाइमस ग्लैंड के जो हार्मोन्स है, इसने अट्रैक्ट कर लिया थाइमस ग्लैंड के अंदर प्री टी सेल्स को. नाउ दीज हार्मोन्स विल एक्ट ऑन दीज प्री टी सेल्स. ये प्री टी सेल्स जितने भी है ना, ये इसके कॉर्टेक्स में जाके वहां पे अट्रैक्ट होके वहां पे चले जाते हैं. अब जो वहां के एपिथेलियल सेल्स हैं थाइमस ग्लैंड के, दे आर सिक्रेटिंग दीज हार्मोन्स. देन दीज हार्मोन्स का तुमने एक्शन अभी एंडोक्राइन चल ही रहा है, यू नो कि देयर आर सर्टेन हार्मोन, जो भी हार्मोन्स होंगे वो रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, एंड देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस वाया सेकेंडरी मैसेंजर्स या जी प्रोटीन्स मीडिएटेड रिएक्शंस हो रहे होते हैं, या स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जो सीधे न्यूक्लियस पे एक्ट करते हैं. ओके, दीज हार्मोन्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड, दे एक्ट ऑन द डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्री टी सेल्स. और ये क्या बनाएंगे, एक तो यहाँ पे टीसीआर दिखाई दे रहा है, टी सेल रिसेप्टर प्रोटीन्स बनाएंगे. ओके, देन दे विल फॉर्म
ईदर CD4 प्रोटीन बनाएंगे या CD8 प्रोटीन बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये डीएनए पे एक्ट करते हैं, उसका देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स विच आर फॉर्म्ड। उन जीन से टी सेल रिसेप्टर्स बनते हैं, ओके, जिसको टीसीआर बोलते हैं। देन देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड। ये जो क्लस्टर डिफरेंशिएशन प्रोटीन्स होती हैं वो बनती हैं बेसिकली CD8 एंड CD4, क्योंकि हम टी सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बनती हैं, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ thymus hormone. Then what happens now? These pre-T cells, they are exposed to MHC class 1 and MHC class 2 types of proteins. Okay. Now जो CD, देखो एक चीज इसमें याद रखने वाली है, यू मे बी नोइंग दैट CD8 जो प्रोटीन होती है दैट बाइंड्स टू MHC class 2, okay, oh sorry, CD8 binds to class 1, okay, CD8 MHC class 1। अब याद कैसे रखना, मैंने कैसे याद किया इसको, CD8 अगर 8 को हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या आएगा, CD1, 1 मतलब 1, और MHC class 1, okay, so CD8 will be binding to class MHC class 1 and CD4 will bind to MHC class 2। तो थाइमस ग्लैंड इन दोनों जो प्रोटीन्स बनी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमस हार्मोन, इनको एक्सपोज करते हैं MHC class 1 और MHC class 2 से। जो टी सेल्स, अब बहुत सारे टी सेल्स हैं जो ये सारी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो MHC class 1 और MHC class 2 से परफेक्टली बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो दीज आर सेल्फ एंटीजेंस, दीज आर सेल्फ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। तो पहला तो ये हो कि अपनी बॉडी को टी सेल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो दे आइडेंटिफाई आवर ओन सेल्स थ्रू MHC class 1 और MHC class 2 मॉलिक्यूल्स, ओके। जो टी सेल्स पे CD4 और CD8 प्रोटीन्स होती हैं MHC class 1 और MHC class 2 से परफेक्टली बाइंड कर जाती हैं, दे आर सिलेक्टेड, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। तो पॉजिटिव सिलेक्शन सर्वाइवल डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू बाइंड टू MHC मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे इसमें दिखाया गया, ठीक है। तो पहला सिलेक्शन तो ये हो गया, जो भी हमारे टी सेल्स के रिसेप्टर प्रोटीन्स बन रहे हैं दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई टू आर MHC class 1 एंड MHC class 2, ओके, इसे बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। और जो नहीं, इसमें बहुत सारे बन रहे हैं ना, जो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके लिए क्या करेगा थाइमस सेल्स, थाइमस एपिथेलियल सेल्स विल सिक्रीट fast proteins, okay, fast, and those T cells, pre-T cells, which are not able to recognize MHC class 1 and MHC class 2 will undergo apoptosis, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि bind to MHC class 1, yes, no, तो they will be destroyed by apoptosis। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि टीसीआर प्रोटीन, जो टीसीआर रिसेप्टर्स बने हैं हमारे, ठीक है, अब इसका काम शुरू होता है। अब जो टीसीआर रिसेप्टर्स हैं उसको थाइमस जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे प्रेजेंट दीज सेल्स, दीज प्री टी सेल्स विद सेल्फ एंटीजन। अब सेल्फ एंटीजन को अगर ये आइडेंटिफाई करता है, इसका मतलब ये तो हमारे लिए दे आर they are of no use to us and they will cause trouble to us, they will call autoimmune, they will lead to autoimmune disease, okay। तो जैसे इसको सेल्फ एंटीजन देंगे और जो जो टीसीआर इस पे इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, they are of no use to body and they are harmful, so they will undergo apoptosis। जो टी सेल रिसेप्टर सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं they will further mature, okay। तो इसीलिए नेगेटिव सिलेक्शन में क्या हो गया, द सर्वाइवल डिपेंड अपॉन नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ एंटीजन, ओके। सो अगर सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं ये वाले टी सेल तो इनको अपॉप्टोसिस से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और नहीं करते हैं तो वो आगे सर्वाइवल के लिए ये जाते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, ओके, कि हाउ द टी सेल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। टी सेल प्रीकर्सर टी सेल था, उसके अंदर
हार्मोन्स एक्ट करेंगे एंड इट विल फॉर्म 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक तो CD4 प्रोटीन, CD4 रिसेप्टर्स बनाएगा, CD8 रिसेप्टर बनाएगा और टी सेल रिसेप्टर बनाएगा। अब बॉडी क्या करेगी, थाइमस क्या करेगा, थाइमस MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को एक्सपोज करेगा। जो भी टी सेल प्रीकर्सर टी सेल इनसे बाइंड कर जाता है, ठीक है, दे आर पॉजिटिवली सिलेक्टेड फॉर फर्दर मैच्योरेशन, और जो नहीं बाइंड करते उनको बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है, अपोप्टोसिस, थाइमस ग्लैंड डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, देन इन द सेकंड स्टेप, अब MHC वाला तो फंडामेंटल सॉल्व हो गया, CD8 और CD4 दोनों है उसके ऊपर। अब टी सेल रिसेप्टर का काम आता है। टी सेल रिसेप्टर को जो प्रोटीन्स है, टी सेल रिसेप्टर प्रोटीन्स, उसको हम सेल्फ एंटीजन को एक्सपोज करते हैं। अगर वो पहचान लेता है सेल्फ एंटीजन को, फिर these T cells are negatively selected, oh sorry, these T cells are destroyed, और जो नहीं पहचान पाएगा सेल्फ एंटीजन को, तो इसीलिए उसको नेगेटिव सिलेक्शन बोल गया, उस वाले को हम आगे मैच्योरेशन प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे। अब यहाँ पे अब हमारे जो इस वाले स्टेप पे आए, you can see that only 2% of cells survive selection process in the thymus, क्योंकि these are very specific kind of cells. Okay, अब ये वाले जो सेल्स जो होते हैं, अब ये मेडुला की तरफ को आ गए। अब क्या होता है, ये मेडुला की तरफ को एक गेट टाइप आप समझो ऐसे करके, कि अब इसके ये जो प्रीकर्सर टी सेल है, इस पे CD4 प्रोटीन्स हैं विच आर परफेक्टली आइडेंटिफाइंग द MHC मॉलिक्यूल, और टी सेल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ जो मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में एक पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये मीट कर रहे होते हैं, वहां पे क्या होता है कि बाय रैंडम चांस, रैंडमली वहां पे अगर कोई MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल इसको एक्सपोज हो जाता है, तो ये CD8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई टी सेल प्रीकर्सर टी सेल MHC क्लास 2 वाले से एक्सपोज हो जाएगा, तो वो CD8 हो जाएगा, और बाकी का क्या होगा, बाकी जितने भी रिसेप्टर्स इस पे बने थे वो दे विल अंडरगो इन्वोल्यूशन, उनका डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हमारे पास इसको बोलते हैं 3 एंटीजन पॉजिटिव, हाँ, इस पे टी सेल रिसेप्टर है, इस पे MHC1 रिसेप्टर CD8 है जो MHC1 को रिकॉग्नाइज कर रहा है, CD4 भी है जो MHC2 को रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेकिन गेट पे क्या है, जहाँ पे मेडुला और उसके थाइमस का कॉर्टेक्स है, वहां पे अगर बाय रैंडम चांस अगर MHC1 मॉलिक्यूल इसको एक्सपोज होता है, बाहर निकल रहा है ये, ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर प्री टी सेल क्या करेगा, सिर्फ MHC क्लास 1 को आइडेंटिफाई करते हुए CD8 में कन्वर्ट हो जाएगा। CD4 के जितने भी इस पे रिसेप्टर बने थे, दे विल अंडरगो डाउन रेगुलेशन, ओके, और साथ में टी सेल रिसेप्टर तो इस पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएंगे हमारे CD8 होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, और ऐसी MHC2 को जो एक्सपोज होगा एट द एग्जिट, this all is taking randomly in the thymus, okay, तो वो हो जाएंगे CD4 cells which are known as CD helper cells, okay, और बाकी CD8 वाले जो इस पे प्रोटीन रिसेप्टर्स होंगे वो डाउन रेगुलेट हो जाएंगे। नाउ अंडर सर्टेन these hormones only, there are certain cytokines which are produced by the thymus gland। अब इनमें से जो टी हेल्पर सेल बने और जो टी सप्रेसर सेल बने, इनमें से कुछ सेल्स रेगुलेटरी सेल्स बन जाएंगे, टी रेगुलेटरी सेल्स बन जाएंगे इसमें से, ठीक है। दे कैन बी सिलेक्टेड ईदर फ्रॉम CD4 और फ्रॉम द CD8 lineage, okay। नाउ this much you should know कि how the maturation is taking place। however there are 95% चांसेस कि ये आएगा नहीं एग्जाम, बट somehow जैसे कोविड चल रहा है, कोविड की बीमारी आ गई, तो ये भी कुछ you never know if this thing may come or not, but obviously for your own knowledge you should know कि how the maturation of the T cells is taking place, okay। I hope I am clear up till this point। then अगर थाइमस ग्लैंड की कोई डिजीज हो जाए तो उसमें क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो
एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर लेते हैं कि वी यूज टू कंडक्ट अ लॉट ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम किसी माइस को लें और उसको थाइमेक्टमी कर दें उसको, तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द टी सेल। ओके, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती उनके अंदर, ये उनमें देखा है। ठीक है, और एक सिंड्रोम होता है विच इज नोन एज डिजोर्स सिंड्रोम, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंजेनाइटल थाइमिक एक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, जैसे कई पेशेंट आपने देखे होंगे एक एंड्रोप्लाजिया होता है या कोई लिम्ब भी नहीं होती किसी के, ऐसी थाइमस ग्लैंड भी एब्सेंट हो सकता है। तो इन सच people, due to the absence of circulating T cells and due to the absence of cell mediated immunity, there is increased susceptibility of these individuals to infectious disease. Okay, और बाद में अगर मेल फंक्शन कर जाए, जहां पे हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन देखा था ना, नेगेटिव सिलेक्शन वाला पार्ट इज सो इम्पोर्टेंट कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना मायस्थीनिया ग्रेविस में, अगर किसी में जो क्लोन बने इसके टी सेल्स के, ठीक है, टी सेल्स, अब टी सेल्स वहां से थाइमस ग्लैंड में से बन के ये सारे के सारे जितने भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वहां पे जाके रहते हैं, वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड वेन एवर दे आर नीडेड दे गो फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं इसी वजह से, जो टी सेल्स जो हमने हटाए थे, somehow there is some kind of mutation taking place and they lead to autoimmune disease like myasthenia gravis, probably you might have read in the neuromuscular junction. ठीक है, and in such individuals it has been seen that जैसे पोस्ट प्यूबर्टी अमिताभ बच्चन को myasthenia gravis हुआ था, you know this is a very famous incident and you should know, because some of the examiners are fond of asking that which celebrity developed myasthenia gravis. So in such individual it has been seen that there occurs hyperplasia of the thymus gland. वैसे तो इन्वोल्यूशन हो जाता है, अमिताभ बच्चन को बहुत लेट हुआ था, 50s में हुआ था myasthenia gravis की जो भी मतलब there is a particular age group in which myasthenia gravis takes place. तो वहां पे it has been seen that there is hyperplasia of the thymus. तो इसकी मेल फंक्शनिंग हो जाएगी तो ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, I hope I made myself clear in this thymus gland. So now we move to the pineal gland. A pineal gland is a, you know, is a very small structure which is found in the brain, and pineal gland is a midline brain structure that is unpaired. बाकी सब चीज paired होती है, अगर हम डिसेक्शन करें ब्रेन का तो दोनों तरफ का आइडेंटिकल होता है, लेकिन it is one of the thing which is unpaired. Okay, a pineal gland को जो यानी मतलब there are different kind of names which are given to this in Indian mythology. It is known as third eye. ठीक है, अब थर्ड आई से इसका रिलेशन हम देखने की कोशिश करते हैं क्या है आगे जाके, कि why it is known as the third eye. But first of all we let's see the anatomy, functional anatomy. Okay, so यहाँ पे तो मैंने ग्रीन दिखा रखा है. So basically it is a reddish gray structure and it is about the size of a rice grain, 5 to 8 millimeter ही होता है in humans. Okay, and its anatomical position is that it is attached to the roof of the third ventricle. ये third ventricle यहाँ पे आ रहा है, ये देखो third ventricle का ये सारा का सारा आ रहा है यहाँ पे. It is present on the roof of the third ventricle and beneath the posterior end of the, ये posterior end है यहाँ पे ये cerebellum, posterior end है, posterior end of the corpus callosum. Okay, so anatomical position, probably whenever we do the dissection, very rarely we happens to, you know, appreciate the pineal gland, और वहां तक हम
डिसेक्शन उसको इतना डिटेल में दिखा देते नहीं है, बिकॉज देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स which we should be able to identify. Coming to the histology, again there will be capsule, then there will be trabeculae, different trabeculae होंगे, वहाँ पे cells होंगे, and the major kind of cells which are found in the parenchyma of the pineal gland is pinealocytes, okay, then astrocytes, and there are peptidergic neurons like cells, okay. यहाँ पे pineal gland है तो pinealocytes will be functioning to secrete the hormone which is secreted by the pineal gland. Now there are certain important facts which we should know, that pineal gland has a rich blood supply and lacks blood-brain barrier. Okay, blood-brain barrier नहीं होता यहाँ पे, and it has got a very rich blood supply. So, and like thymus, it is larger in size during infancy and childhood, and it regresses and at the time of puberty, and it is of very small size in adults, 5 to 7 mm जैसे मैंने बताया. And the pineal gland receives sympathetic innervation from the superior cervical gland and parasympathetic innervation from pterygopalatine and aortic ganglia. तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द thymus gland. Okay, so the thymus gland secrete melatonin. Okay, melatonin is the principal hormone which is secreted by the pineal gland, and it is synthesized in the pinealocytes, and it is released in both the CSF and the blood. Blood तो है ही सीधा, इसमें rich blood supply है, blood brain barrier है ही नहीं, तो सीधा ब्लड में भी चला जाएगा मेलेटोनिन और CSF में भी चला जाएगा. Since the size of the pineal gland is higher in case of is more in children, so the plasma level of the melatonin will be higher in the children. Okay, so on there is hardly any need to remember, but you should know that in children it is the plasma level is much higher than as compared to adults or old age. So in children it is about 250 picograms per ml, and during adolescent, when the puberty is taking place and it is going under involution, so the plasma level goes down to 120 picograms per ml. Then in adults it is 70 picograms per ml, and old age 30 picograms per ml. अब मेलेटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा circadian rhythm. Okay, and melatonin is one hormone which is related to our sleep cycle. जितना ज्यादा मेलेटोनिन होगा उतना ज्यादा नींद आएगी. अगर अब हम इसके हार्मोन्स के लेवल से देखें, so you realize that children sleep up to 15 to 18 hours in a day. Okay, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी नींद कम होती जाती है, because the level of melatonin is decreasing in as we grow older. और old age में हमने अपने दादा दादी को सबको देखा होगा कि they have very poor sleep because of the decreased level of the melatonin. एक तो ये हार्मोन हो गया melatonin, which is very important, which is the major hormone which has been identified on the basis of evidence, और जिसको हम clinically detect भी कर पाते हैं. Now recently it has been found that pineal gland secrete many peptides that influences the hypothalamic and endocrine secretions. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं which are under research that pineal gland influences the function of hypothalamus and other endocrine organs. अब ये चीज इसमें इसलिए important है कि if you study about the physiology of yoga, and if see, when I was preparing for this lecture, I was working on why the pineal gland is known as third eye, और third eye उसका अलग से there are different kind of yogic activities, different types of meditations which we
claim, which the yogic people claim, that it will awaken your third eye or it will influence your pineal gland. और जो लोग ये करते हैं, there are researchers, see research is going on this thing, कि जो भी ऐसी meditations करते हैं उनका their body is in perfect harmony, stress कम होगा उन लोगों को, and they will have a जैसे एंशियंट ऋषिज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं कि या जो भी सूफी संत हर सारे के सारे धर्म में होते हैं कि it has been said that these people used to do a lot of meditation और अपनी थर्ड आई को अवेकन कर लेते थे, and they used to have a very brightened face, नूर होता था जिसे बोलते हैं ना, नूर होता चेहरे पे। तो जो लोग ये सारी की सारी चीजें करते हैं, डेफिनेटली दे आर मच हेल्दियर देन रेस्ट ऑफ द पीपल, बट देयर इज नो एविडेंस, हमारे रिसर्च में ऐसा कोई एविडेंस नहीं निकला, बट सिंस over a period of time the research is going on and we are able to find out that apart from melatonin also there are certain kind of peptides or hormones which are produced. So हम ये कह सकते हैं indirectly we can say that if it is secreting certain peptides which is influencing hypothalamic and endocrine secretion, तो ये है कि जब हमारी बॉडी परफेक्ट हार्मनी में होगी, परफेक्ट होमियोस्टेसिस चल रही होगी इस बॉडी की, ठीक है, स्ट्रेस नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पे या हमारी बॉडी फील मच हेल्दियर देन जो हम नॉर्मली रहते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्ट्रेस रिलेटेड टू आवर लाइफ। तुम लोगों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, एग्जाम्स हैं, पूरा का पूरा अभी सिलेबस पढ़ा है, आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, बट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस which are which I am exposed to, and everyone is there जिस सबको स्ट्रेस होगा। तो उस वाले केसेस में वो जो थर्ड आई अवेकनिंग जो हम कर रहे हैं, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दीज पेप्टाइड्स, these haven't been कंक्लूसिव, एक एविडेंस होता है ना वैसा नहीं मिला, बट साइंटिस्ट हैव फाइंड आउट कि हाँ पीनियल ग्लैंड में से कुछ पेप्टाइड्स निकलते हैं। हालांकि दिस इज नॉट द मेन फोकस, बिकॉज वी विल बी आस्क्ड in our exams only those things which are mentioned in the text book। ऐसा नहीं कि जो भी रिसर्च हो, जब तक वो रिसर्च पेपर में होगी, बुक में आएगी, जब तक हमारे से कोई पूछा नहीं जाएगा, बट वी शुड डू। So a little about how the melatonin is synthesized in the body. So melatonin is synthesized from serotonin, okay। पीनियल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होती है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ओके। सो जो पीनियल साइट्स होते हैं उसके अंदर सेरोटोनिन होगी और ये वाली एंजाइम होगी एसिटाइल ट्रांसफरेज। सेरोटोनिन will be converted to an acetyl serotonin, and then again it will be acted upon by another enzyme, okay, and it will be converted to melatonin। अब इसमें मेलेटोनिन और सेरोटोनिन है ना, ये याद रखने दो चीजें, बिकॉज इट मे बी एन एमसीक्यू दैट फ्रॉम विच कंपाउंड, अगर ये एंजाइम्स याद नहीं हो रही कोई, इट हार्डली मैटर्स, ओके। सेरोटोनिन कौन सी एंजाइम से मेलेटोनिन बनता है इन द पीनियल ग्लैंड, इट मे बी एन एमसीक्यू। सो फ्रॉम सेरोटोनिन मेलेटोनिन फॉर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक nerve supply, okay। Melatonin and the enzymes responsible for the synthesis are found in the pineal sites, and एक चीज इसमें याद रखने वाली बात है, क्योंकि melatonin synthesis is increased during the dark period and maintained at a low level during the light period। इसमें लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लाइट जब होगी मेलेटोनिन कम सिंथेसिस होगी, और डार्क होगी तो मेलेटोनिन ज्यादा सिंथेसाइज्ड होगी। सो मेलेटोनिन हार्मोन हेल्प और इन्फ्लुएंसेस आर डायर्नल वेरिएशन। जब भी देखोगे कि अंधेरे में हमें नींद आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, जब भी मेलेटोनिन सिक्रीट होगा एंड द स्लीप साइकिल विल सेट इन, ओके। सो हाउ द लाइट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस। this diagram I have taken from the Ganong। so ये देखो कि whenever the light is there,
light falls on the retina, then there is a tract from the retina to the hypothalamus. Okay, तो यहाँ से क्या होगा, light आई retina पे, then through the this retino hypothalamic tract, it will go to suprachiasmatic nucleus. There is suprachiasmatic nucleus which is responsible for our circadian rhythm in the hypothalamus. Okay, ये यहाँ पे जाएगा signal. Then during light क्या होगा, during light GABA will be released from the suprachiasmatic nucleus. Okay, and it will inhibit the further transmission of signal. तो paraventricular nucleus है और ये intermediolateral जो nucleus है यहाँ पे, and through the superior cervical ganglion से हमारी जो supply जा रही है to the pineal gland, it is hampered. So during light, what happens? Due to the GABA which is secreted from the suprachiasmatic nucleus, there is less stimulation of the superior cervical ganglion and there is less stimulation of the pineal gland. So sympathetic supply जो चाहिए होती है pinealocytes को, that will be decreased. But whenever in the dark, the suprachiasmatic nucleus will not be secreting GABA, isn't it? It will not be activated. So this superior cervical ganglion will be secreting more. ये sympathetic supply है, sympathetic supply में norepinephrine secrete होती है. Okay, so this norepinephrine which is secreted more during the night will actually activate the enzyme and acetyl transferase. Okay, so the norepinephrine from the fibers which are from the superior cervical ganglion, they increases the activity of the N-acetyl transferase. So more of the melatonin will be formed from the serotonin which is available. Okay, so now we enumerate that what happens. See, melatonin which is secreted from the pineal gland, so have a role in the diurnal pattern or the circadian rhythm. ठीक है, so the diurnal change in the melatonin level, dark में ज़्यादा होता है, light में कम होता है, is believed to coordinate with the endocrine response of the body with the light and the dark cycle in the environment. Okay, and melatonin is also believed to inhibit the onset of puberty. जब हम puberty पढ़ेंगे तो there is a role of melatonin. ज़्यादा melatonin होता है तो puberty inhibit रहती है. Therefore, the regression of the pineal gland which take place during puberty stimulate the beginning of pubertal changes. तो melatonin के दो काम हो गए, एक तो circadian rhythm और diurnal variation में काम आती है, दूसरा it inhibit the onset of the puberty. Okay, so and और ये कहाँ से हमें evidence मिला? It has been seen that the patient or the children who suffer from precocious puberty, they are associated with the pineal abnormalities. Okay, जिसमें भी pineal gland का tumor हो जाएगा, उसमें precocious puberty हो जाएगी क्योंकि pinealocyte will be more, more in number, and a lot of melatonin will be secreted, and the person will have precocious puberty. However, there are other reasons for that. Okay, so यहाँ पे टेक होम मैसेज क्या है कि पीनियल ग्लैंड के अंदर मेलाटोनिन बनता है फ्रॉम द सेरोटोनिन. एक यही एमसीक्यू आता है, नीट में भी आता है और तुम्हारे वाले में भी आ सकता है. बाकी दिस पाथवे, this you can also use in your when you study the circadian rhythm, how the circadian rhythm is maintained. तो मेलाटोनिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करता है. तो यू शुड नो कि ड्यूरिंग लाइट जो रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक है वो सब सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करके रखता है और वो गाबा बनाएगा तो आगे का जो पाथ है दैट विल बी इनहिबिटेड. बट इन ड्यूरिंग द लाइट द गाबा विल नॉट बी सिक्रेटेड. जैसे हम बेसल गैंग्लिया के सर्किट्स पढ़ते हैं ऐसे ही इसमें
कि it will not be secreted and superior cervical ganglion will be activated and more of the sympathetic discharge will be going to the pineal gland and more of the melatonin will be secreted. It's 9:48. We will take now. I will take another small topic. That is local hormone. बच्चों इस पे जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड में से बहुत ही कम चीजें आती हैं, ठीक है। थाइमस ग्लैंड का नाउ यू हैव सीन दैट हाउ द टी सेल एजुकेशन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे बस इतना हमारे फर्स्ट प्रॉफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि एक तो प्यूबर्टी से उसका रिलेशन है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट अंडरगोज इन्वोल्यूशन और पीनियल ग्लैंड में। दूसरा, थाइमस में प्री टी सेल्स जो होते हैं दे फॉर्म मैच्योर टी सेल्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ द टी सेल्स इज टेकिंग प्लेस इन द थाइमस ग्लैंड अंडर द वेरियस हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द थाइमस। इतना तुम्हें याद है, बहुत है, ओके। जो CD और वो पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन, if you are able to understand, this is, this will be awesome for the first problem. In the pathology, again these things will be covered in a lot of details. जैसे मैंने अभी बताया ना कि how the thymus hormones act on the DNA of the pre-T cells to form the different kind of proteins, वो वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। But as of now, you should know कि different receptors forms होते हैं, CD8, CD4, साथ में टी सेल रिसेप्टर। तो सबसे पहले CD8 और CD4 को सेट करना होता है। तो MHC1 और CD8, ठीक है। MHC1 CD8 को रिकॉग्नाइज करता है, CD4 MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करता है। अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेता है तो दे आर पॉजिटिवली सिलेक्टेड। इन द नेक्स्ट स्टेप टी सेल रिसेप्टर को सेल्फ एंटीजन देते हैं। अगर सेल्फ एंटीजन को वो नहीं रिकॉग्नाइज करता तो वो हमारे लिए अच्छा है, उसको हम नेगेटिवली सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेल्फ एंटीजन को, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस थिंग यू शुड नो। पीनियल ग्लैंड में यू शुड नो दैट अनाटॉमिकल पोजीशन की कॉर्पस कैलोसम के एंड पे होता है, थर्ड वेंट्रिकल के रूफ पे होता है। देन इट इज मच लार्जर इन केस ऑफ चिल्ड्रन, देन प्यूबर्टी पे छोटा हो जाएगा। और ऐसे करके याद रखना है कि अगर ज़्यादा बड़ा ग्लैंड होगा तो ज़्यादा मेलेटोनिन सिक्रेट होगी। मेलेटोनिन लाइट और डार्क साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। तो व्हेन अ लॉट ऑफ लाइट इज देयर तो मेलेटोनिन सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब लाइट नहीं होती है तो मेलेटोनिन सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं, सपोज फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ऑब्जर्व कि अगर हम रात को सोने से पहले लैपटॉप या अपना मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर लें तो हमें नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देयर आर टाइम्स कि जब हम अपना मोबाइल यूज़ कर, यानी मतलब रात को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, एंड देयर आर सर्टेन टाइम्स जब हमारे एग्जाम हो रहे होते हैं, वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द बुक, ओके। तो उस समय हमें नींद नहीं आती। लेकिन अगर हमने मोबाइल को देख लिया तो लाइट है ना, लाइट क्या करेगी, अगेन इट विल लीड टू लेस स्टिमुलेशन ऑफ द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और मेलेटोनिन कम रिलीज होगी, और मेलेटोनिन कम रिलीज होगी तो स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी, और सर्काडियन रिदम पूरी चेंज हो जाती है, ओके। नाउ वी कम टू द लोकल हार्मोन्स। इसका भी यही हाल है। लोकल हार्मोन्स में देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस which may come, and probably there may be these this local hormones may come as a MCQ to you. MCQ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि MCQ अटेम्प्ट करने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, थ्योरी में तो लिखना पड़ता है, लेकिन MCQ के साथ सबसे प्रॉब्लम यह है कि देयर इज ऑल और नन फिनोमेना, या तो नंबर आएंगे या जाएंगे, कुछ और हो नहीं सकता। रिसेंटली वी हैव कंडक्टेड अ सप्लीमेंट्री एग्जाम ऑफ MBBS, उसमें बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि MCQs वर दे वर फ्रेम्ड इन अ वेरी डिफरेंट,
थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल से ज़्यादा हो गए वो, तो उसमें से कुछ तो होते हैं कि जो बहुत इजी होते हैं, और जो थोड़े से भी ट्रिकी थे उसमें नंबर ही नहीं आ रहे। पीपल वर स्कोरिंग 6-4 आउट ऑफ 20। ये एमसीक्यू के साथ सबसे प्रॉब्लम होती है, तो यू शुड आइडली कंसंट्रेट। लोकल हार्मोन्स को मैंने जितने भी आई हैव टेकन all I'm discussing all those hormones which are given in your textbook of एक ही जन, क्योंकि गैनोंग में तो अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, अलग अलग पेज पे दे रखे हैं। गैनोंग एक डॉक्टर एक ही जन की जो बुक है उसमें एक ही जगह इसको कंपाइल कर रखा है। नाउ while compiling this to make it interesting, थोड़ी सी इसमें मैंने मेडिकेशंस यूज किए हैं उसके लिए, यानी जो जो लोकल हार्मोन्स के अगेंस्ट या उन लोकल हार्मोन्स को एगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है, उसके एंटागोनिस्ट वाली ड्रग्स भी यानी उसमें मैंने ऐड किए, सो दैट इट बिकम्स अ बिट इंटरेस्टिंग। अदरवाइज just there is just enumeration of these hormones. So first of all, we should know what are local hormones. Local hormones, they are substances which are produced by a wide variety of cells in the body, and they have intense biological activity, but they generally act locally. Okay, locally act karte hain at the site of synthesis and release. So they also has been called as autocoids. Autocoids भी इसको terms use करते हैं. So there is a classification of that they may be derived for the amines, ठीक है, then there are peptide derived hormones and lipid derived amine जो अमाइन derived है उसमें हिस्टामिन है एंड सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन अभी हमने देखा, सेरोटोनिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकल हार्मोन प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। देन पेप्टाइड हार्मोन में एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन सिस्टम तुम पढ़ोगे जब क्या कहते हैं किडनी वाला चैप्टर हो रहा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है। देन लिपिड ड्राइव्स, देन these are prostaglandins, leukotrienes, interleukins, so it will come in the immunity wala chapter, okay। so अब जितने भी जैसे जितने भी ये लोकल हार्मोन्स हैं, obviously there are certain physiological roles, there are certain pathophysiological roles कि जहाँ पे इंजरीज में आएंगे, अभी देखते हैं। so first of all we come to the local hormones or the autocoids which are derived from the amine. So these hormones are derived from the naturally occurring amino acids, and in this we will be discussing histamine and serotonin. They are the major autocoids. So histamine is found from the histidine, amino acid histidine, and it is an important inflammatory mediator. It is a potent biogenic amine and plays an important role in the inflammation और एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होते हैं उसमें, एलर्जीज में, एंड when you will study the GIT, or I think GIT might have been completed, so there is a role of histamine in the gastric acid secretion also, okay। Now as the part of the immune response of the to the foreign pathogens, it is produced by the basophils and the mast cells which are found in the कनेक्टिव टिश्यू, ओके। बेसोफिल्स और मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है हिस्टामिन। यहाँ पे याद रखने वाला बात यही है कि हिस्टामिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। क्लिनिकली तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की तरह यूज होता है, और दूसरा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ओके, एंड सिक्रेटेड बाय बेसोफिल्स एंड द मास्ट सेल। तो मास्ट सेल्स कहाँ कहाँ होंगे? पल्मोनरी टिश्यूज में, यूजली इन द म्यूकोजा ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, देन स्किन में। अब यहीं पे देखो मैंने बोला कि हिस्टामिन जो होता है इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा इसका रोल है, तो पल्मोनरी टिश्यूज में होता है। इसलिए अगर पल्मोनरी टिश्यू में हिस्टामिन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो इट विल मेल फंक्शन कैसे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा, ओके। स्किन में हो जाएगा, अगर स्किन मास्ट सेल्स जो स्किन में होते हैं
if the histamine releases from the mast cells in the skin, so स्किन में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, आर्टिकेरिया टाइप हो जाएगा, आर्टिकेरिया हो जाएगा. देन द मास्ट सेल विच आर प्रेजेंट इन द जीआईटी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में भी प्रोड्यूस होता है. देन द नॉन मास्ट सेल साइट्स में देखेंगे सीएनएस में होता है. देन एपिडर्मिस ऑफ द स्किन अगेन. एंड ये तो होता मास्ट सेल, जहाँ पे मास्ट सेल होगा, जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे होगा. नॉन मास्ट सेल्स में भी सिक्रेट होता है. सीएनएस के सर्टेन न्यूरॉन्स सिक्रेट हिस्टामिन. देन जीआईटी के सर्टेन सेल्स सिक्रेट हिस्टामिन. एंड द सेल्स इन द रीजनरेटिंग और रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज और बेसोफिल्स में, जैसे मैंने बताया. अब जितने भी जो हार्मोन्स होते हैं, दे एक्ट थ्रू रिसेप्टर्स. In case of histamine, there are 3 major type of receptors. Okay, so इसमें से H1 histamine type receptor 1 और H2, ठीक है. These are very important clinically also. तो जितने भी हार्मोन्स हैं, यू नो कि इधर ये दे आर जी प्रोटीन कपल्ड रिएक्शंस होते हैं उसमें. तो हिस्टामिन एक्ट थ्रू जी प्रोटीन मैकेनिज्म. ओके. एंड कहाँ कहाँ पे ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? द H1 रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द एयरवे जैसे मैंने बताया, जीआईटी में. ओके. एंड इन द ब्लड वेसल्स. सो दीज रिसेप्टर्स मीडिएट इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी. जो एलर्जी होगी वो हमारी हिस्टामिन टाइप 1 रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन की वजह से होगी और हिस्टामिन के रिलीज की वजह से होगी. तो यहीं से हमारा क्लिनिकल पार्ट शुरू होता है. अगर सपोज हिस्टामिन इज रिलीज्ड इन द ब्रोंक्यूल्स और यू कैन से इन द स्किन, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, वहाँ पे अर्टिकेरिया हो जाएगा. अगर हमारे ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ट्री में हिस्टामिन रिलीज होगी तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा. अगर हम ऐसी ड्रग दे दें विच कैन ब्लॉक द रिसेप्टर H1 रिसेप्टर, तो क्या होगा? तो हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगी एंड द इन्फ्लेमेशन विल सबसाइड. और द इन्फ्लेमेशन एक तो सबसाइड हो जाएगी, दूसरा क्योंकि डिग्रेडेशन होता रहता है, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है जो भी सब्सटेंस होता है जहाँ पे किसी भी रिसेप्टर पे काम कर रहा होता है. तो एंटी H1 रिसेप्टर, जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं, जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी जो ड्रग्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करेंगी. दे विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन. ओके. उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऐसे करके H1. Then H2 receptors, they are found basically in the gastric mucosa and mediate primarily the gastric acid secretion. तो H2 जो रिसेप्टर होते हैं वो जीआईटी में होते हैं और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कर देते हैं. अब हमने बहुत बहुत कॉमनली वी हैव हर्ड दैट मुझे एसिडिटी हो गई, मैंने बाहर का खाना खा लिया, ठीक है, तो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मे बी ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ more production of the histamine and activation of the H2 receptors. तो हम क्या कर सकते हैं? अगर H2 receptor antagonist अगर हम खा लें तो what will happen? There will be decrease acid production. Okay. So H1 receptors का importance और H2 receptors का clinical importance बहुत ज़्यादा clinically. और अभी तुम next slide में मैं दिखाता हूँ. The drugs which are used as an H1 antagonist और H2 antagonist, they are very commonly used और सभी को पता होती है, तुम लोगों को भी पता होगा. H3 receptor की बात कर लेते हैं एक बार. They are again they act by the G protein mechanism. Then they are found primarily in the CNS and the presynaptic membrane and they cause inhibition of the release of the histamine. Okay. H3 receptors clinically बहुत कम यूज होते हैं. तो H3 रिसेप्टर्स उल्टा काम करते हैं. जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन. जैसे मैंने बताया पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अल्सर अगर हो जाएंगे तो देयर विल बी एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द H2 रिसेप्टर्स एंड दे विल प्रोड्यूस एक्सेसिव एसिड. और एलर्जिक फिनोमेना में in allergic phenomena there will be mediation of the hypersensitivity reactions, ठीक है.
which is brought about by the histamine. तो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे मैंने बताया कि H1 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर दे दो तो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। तो अब याद करने की कोशिश करो, या तुमने कभी देखा हो या सब लोगों को सुना हो कि देयर इज अ टेबलेट नोन एज एविल सेट्रिजीन। हम सेट्रिजीन खाते हैं कि जुकाम हो गया मुझे, ठीक है, या एलर्जी हो गई तो एविल खा लिया। और ये जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको फिनार्गन का सिरप दिया जाता है। दिस होल क्लासिफिकेशन यू विल स्टडी इन द पार्ट। मैंने सिर्फ तुम्हारे को इन्यूमरेट करने के लिए, ओके। देन diphenhydramine is chemical which is used in the Benadryl. Benadryl सिरप जो आता है कफ का, उसमें यूज होता है, ओके। सो how they act? They are H1 receptor antagonist, okay. So the H1 receptor antagonists are basically known as antihistamines, okay. तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सिंपल है। अब H2 ब्लॉकर्स वही है कि अगर ज़्यादा H2 जो रिसेप्टर हैं जो एक्टिवेट हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा हिस्टामिन बन रहा है तो हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब इसमें गैस्ट्रो सिलेक्टिव एंटी हिस्टामिनिक चाहिए होती है। H1 जो ब्लॉकर होते हैं वो हिस्टामिन जहाँ पे जैसे ब्रोंकियल ट्री में होती है या स्किन में होती है, बेसिकली वहाँ दो याद रख लोगे बहुत है, वहाँ पे यूज करते हैं हम, एंड एलर्जी वहाँ पे हो रही है। लेकिन अब ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो रही है एक्स्ट्रा, which is due to the activation of the H2 receptors. So H2 receptor blockers, अब इसमें से this is a very famous drug ranitidine और Rantac, एसिडिटी के लिए हम यूज करते हैं कई लोग, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी very commonly used medication like paracetamol, okay. So this act on the H2 receptors to block the gastric acid secretion, okay. Now come to serotonin. Now serotonin is also known as 5-hydroxytryptamine. It is a monoamine neurotransmitter which is biochemically derived from tryptophan. Amino acid से हम इसको they are made from the amino acid tryptophan, okay. इसका serotonin का नाम you should know क्योंकि platelets में भी पाई जाती है। So 5-hydroxytryptamine, and in most of the book in short form 5-HT will be used, okay. So structurally it contains an indole ring and a hydroxyl group and then ethylamine group which is attached to the ring. This you should you can skip, ये तो बाद में भी हमें जरूरत नहीं है। Now approximately 90% of the total serotonin is located in the enterochromaffin cells which are found in the alimentary canal, okay. 90% यहाँ पे पाई जाती है enterochromaffin cells in the alimentary canal, और इसीलिए इसको sometimes it is also referred to as enteramine, and it is also synthesized in the serotonergic neurons of the CNS. and हमने देख लिया CNS में, पहले तो CNS में इतना ज़्यादा सेरोटोनिन होता है, वहाँ पे there are different kind of melatonin वहाँ पे secrete हुआ था from the pineal gland, okay. Serotonin is it's a hormone which is needed for the regulation of the mood, appetite and sleep. जब हम sleep वाला पढ़ेंगे physiology of sleep, then you will see the importance of serotonin also, and for the normal functioning of brain also, mood जो होता है ना, कि जैसे किसी को डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, उसमें भी सेरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेरोटोनिन हैज टू बी इन अ परफेक्ट बैलेंस in an individual so that the person doesn't suffer from any psychiatric disorder. साइकेट्री में सेरोटोनिन का बहुत ज़्यादा यूज है। सेरोटोनिन के लेवल्स अगर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो दे लीड टू मूड डिसऑर्डर्स, ओके। मूड डिसऑर्डर्स में जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, ये सारे के सारे सेरोटोनिन की ऊपर नीचे होने की वजह से हो जाती है। और जो
क्रोमेफिन सेल्स में जितनी भी सेरोटोनिन बनेगी, it goes via the blood to the different tissues where it acts. ठीक है, and also from the blood it is actively taken by the blood platelets through their serotonin receptor transporters where it stores it. प्लेटलेट में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होता है सेरोटोनिन का. ओके, व्हेन द प्लेटलेट बाइंड टू अ क्लॉट दे रिलीज सेरोटोनिन where it serves as a vasoconstrictor agent and helps to regulate the होम्यो, मैंने गलत लिख दिया, हीमोस्टेसिस, सॉरी. ठीक है, where it helps to regulate the hemostasis. जब ब्लड कंस्ट्रक्शन होगा, कोगुलेशन जहाँ पे तुम पढ़ोगे, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होम्यो हीमोस्टेसिस के लिए यूज होगा, एंड ब्लड क्लॉट. ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स. जितने भी ये लोकल हार्मोन्स हैं, दे एक्ट थ्रू वेरियस रिसेप्टर्स. तो देयर आर 10 to 15 रिसेप्टर्स, बट वो रिसेप्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन over a period of time we have recognized that there are 3 to 4 receptors which are very important for us. Okay, and उन्हीं के अगेंस्ट जैसे मैंने बताया कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं, और अगर इनके जो लेवल्स हैं अगर डिक्रीज हो जाएंगे या इंक्रीज हो जाएंगे, दैट दे विल लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस. तो 5-HT1 receptors, they are, basically they are 5-HT1, they are important because they play a very important role in the pathophysiology of migraine. ठीक है, क्या होगा? Decrease serotonin release lead to constriction of cranial blood vessels and अभी आ रहा हूँ, just hold on for a minute. Sorry. हाँ, तो 5-HT1 जो होता है वो माइग्रेन में प्रॉब्लम करता है. माइग्रेन किसके वजह से होगा? देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द क्रेनियन वेसल्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द 5-HT लेवल्स. तो हम क्या करते हैं, देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच आर नोन एज ट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन, ये अभी तो नाम नहीं सुना होगा तुम लोगों ने. तो इसके अगेंस्ट अगर हम ये वाली मेडिकेशन दे देंगे, तो दे विल हेल्प इन द vasodilation of the this blood vessels of the cranium, and then the headache will relieved. Okay, then similarly there are 5-H2 receptors which are found in the their main action is for the platelet aggregation, smooth muscle contraction. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि there are different kind of drugs which act on these receptors, and अगर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, अगर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक नॉर्मल पेरिस्टल्सिस के लिए भी चाहिए, अगर एक्स्ट्रा हो रहा है, ओके, अगर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा सेरोटोनिन की वजह से, देन वी कैन यूज इट्स एंटागोनिस्ट. आई एम रियली सॉरी बच्चों की ये वाले मतलब इट इज अ बिट बोरिंग टॉपिक, बट वी हैव टू कवर इट. ओके, देन 5-HT3 रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड देयर एक्टिवेशन लीड्स टू वॉमिटिंग एंड पेरिस्टल्सिस. तो 5-HT1 होते हैं, हेडेक में काम करते हैं, जो हमारे को माइग्रेन होता है वहाँ पे उसकी पैथोलॉजी में उसका रोल है. एंड 5-HT3 का है हमारा वॉमिटिंग में. ओके, वॉमिटिंग में इसका रोल है. तो क्या करेंगे, जो एंटी वॉमिटिंग जो ड्रग्स होते हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होते हैं, ऑन्डेनसेट्रोन आजकल बहुत ज़्यादा यूज होती है. कभी देखोगे कि वॉमिटिंग वाली जो ड्रग होती है, ठीक है, ऑन्डेनसेट्रोन इज द वही क्रोसिन की तरह और एंटी हिस्टामिनिक की तरह, दिस इज ड्रग विच इज यूज्ड वेरी कॉमनली. सो इट एक्ट्स ऑन द 5-HT3 रिसेप्टर.
ओके, एंड देन 5-HT4 रिसेप्टर्स होते हैं, दे हेल्प इन द पेरिस्टालसिस और गट की सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है। देखो वॉमिटिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो सेंट्रल वॉमिटिंग हो सकती है कि सेंट्रल यानी हमारा वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाए, उसको बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉकर को दे सकते हैं, ऑर्डेंसेट्रो। और अगर 5-HT रिसेप्टर्स विच आर फाउंड इन द गट, ठीक है, दे हेल्प इन द पेरिस्टालसिस। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो रिवर्स पेरिस्टालसिस हो रही है, ठीक है, अगर हम उसको सही डायरेक्शन में पेरिस्टालसिस कराएं तो क्या होगा, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स अगर दें, अगर इसका हम एगोनिस्ट दे दें तो इंक्रीज पेरिस्टालसिस विल टेक प्लेस एंड ऑल द कंटेंट विल बी will move toward the anal canal. Okay, so a drug which is known as metoclopramide is very commonly used. पहले अब ये ondansetron is a very new drug which was launched almost 10 years ago. ठीक है, उससे पहले metoclopramide अभी भी before we are performing any kind of surgery we are using this drug metoclopramide. ये क्या करेगी, 5-HT रिसेप्टर्स पे काम करती है, इंक्रीज पेरिस्टालसिस बढ़ा देती है और जो वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी उसको कम करती है। ओके, देन पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स मैंने बताया दैट इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन which is probably involved in sleep, temperature regulation, cognitive functions, behavior and mood के लिए सेरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट होती हैं दे आर एक्टिंग ऑन दीज रिसेप्टर्स, उनको बोलते हैं सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ओके, SSRIs, तो उसको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस सेरोटोनिन plays a very important role in sleep, temperature regulation, behavior and mood. Then it is the precursor of melatonin in the pineal gland, which we have already seen. Then it also controls the release of certain anterior pituitary hormones. Nausea और vomiting में we have seen its role कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और ऊपर से ब्रेन के कुछ सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। तो उसके हम इधर ब्रेन में क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट को यूज करेंगे और जीआईटी में उसके एगोनिस्ट को यूज करेंगे, सो दैट इंक्रीज्ड पेरिस्टालसिस टेक्स प्लेस। ओके, और माइग्रेन में 5-HT1 काइंड ऑफ रिसेप्टर्स आर plays an important role। ठीक है, so serotonin is said to initiate the vasoconstrictor phase of the migraine and participate in the neurologic inflammation of the affected blood vessels। और जब इतना इम्पोर्टेंट कोई हार्मोन होगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी काम करता है, ब्रेन में भी काम करता है, तो डेफिनेटली इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होमियोस्टेसिस और हीमोस्टेसिस में। हीमोस्टेसिस ये हर जगह मैंने, आई एम रियली सॉरी, ये हर जगह मैंने होमियोस्टेसिस लिख दिया। हीमोस्टेसिस में काम करेगा, हीमोस्टेसिस है स्टॉपेज ऑफ ब्लड। ओके, so accelerate the platelet aggregation, जैसे प्लेटलेट में the serotonin is concentrated in the platelet, so it helps in the platelet aggregation and clot formation। और बाकी intestinal mortality में तो मैंने बता ही दिया। now we come to prostaglandins। so prostaglandins are a group of hormones like lipid compounds and they are derived from the fatty acids। okay, every prostaglandins contain 20 carbon atoms including 5 carbon। 20 carbon atoms से याद रख लेना prostaglandins। sometimes there may be a question that out of the following compound which has 20 carbon atoms, कैनोंग में भी एक जगह है आइकोसोनाइड्स, ठीक है, वहां पे भी very rarely it comes। okay, but you should know that prostaglandins contain 20 carbon atoms and they are produced in many places throughout the body and their target cells are present in the immediate vicinity okay, of their site of secretion। the prostaglandins together with the thromboxane and prostacyclins form the
prostanoid class of fatty acid derivative, and it is a subclass of icosanoids. Icosanoids जो है ना, कभी कभी, वेरी रेयरली, एक एमसीक्यू इस पे भी है, व्हाट आर आइकोसोनाइड्स, जब ऐसे आएगा कि 20 कार्बन एटम्स की कौन सा कंपाउंड है इसमें से, अगर कभी आया तो, ठीक है। नीट में तो आता है, लेकिन प्रॉफ में तुम्हारे वेरी रेयरली इट शुड कम। नाउ वी नो, वी शुड नो हाउ दीज आर फॉर्म्ड। इसको याद नहीं करना, बस समझने की कोशिश करो। समझाने के लिए सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन, सिर्फ एमसीक्यूज की तरफ से आएंगे, तो एमसीक्यू के लिए जो भी चीज आती है उसको समझने की ज्यादा जरूरत है, रादर देन knowing the entire process. We should have a understanding of how these compounds are acting. So the prostaglandins are formed from the membrane phospholipids. उसमें कौन सी एंजाइम एक्ट करती है? फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज एक्ट करेगी ऑन द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स और एरेकिडोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। देन ऑन एरेकिडोनिक एसिड cyclooxygenase enzyme और 5-lipoxygenase enzyme will act. जब cyclooxygenase बनेगी तो prostaglandins बनेंगे, ठीक है। prostaglandin G2, prostaglandin H2, बेसिकली ये सारे के सारे तुम फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, जब इन्फ्लेमेशन हम पढ़ते हैं, इन्फ्लेमेशन जब हम डिटेल में पढ़ते हैं उस समय इट मे कम इन योर एग्जाम। अभी सिर्फ हमें इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड से बनते हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेस और 5-लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम, ये 2-3 एंजाइम्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एरेकिडोनिक एसिड पे जब साइक्लोऑक्सीजनेस एक्ट करेगा, देन प्रोस्टाग्लैंडिन G2 विल बी फॉर्म्ड एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन H2 विल बी फॉर्म्ड एंड दिस विल फर्दर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। अब इसमें क्या करते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन क्या करेगा, वाजोडाइलेशन करेगा, ठीक है, और इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। ओके, सो बच्चों एक चीज याद रखो कि जब भी किसी पेशेंट को MI होता है, उसमें क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट हो जाएंगे, साथ में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम ये प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 अगर ये दे दें एक्सटर्नली, तो इट विल, या उसको प्रिवेंट करने के लिए दे दें हम, तो डेफिनेटली इट विल इनहिबिट दिस एग्रीगेशन। ऐसे करके ड्रग डेवलप की जाती है। ऐसे थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होता है कि इट कॉजेस वाजोकंस्ट्रिक्शन और प्रोमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब जो MI में जो ड्रग्स यूज होती है ना, ठीक है, ईदर इट विल बी अ इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, और या इसका एगोनिस्ट होगा, इसका एंटागोनिस्ट होगा। ओके, सो दैट कि हम MI को, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को, या ब्लड क्लॉट जो कोरोनरी वेसल्स में होता है उसको रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। देन फ्रॉम प्रोस्टासाइक्लिन बन गया, थ्रोम्बोक्सिन A2 बन गया, प्रोस्टाग्लैंडिन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बन गया, ठीक है। ये देखो, वाइजोडाइलेशन, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन क्या होती है, सूजन जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वाइजोडाइलेशन क्या हो जाएगा और इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी हो जाएगी, तो क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड जो भी हमारा होगा वो एक्स्ट्रावेसेट कर जाएगा, जो हमारा ब्लड है जो इसमें वेन्स में जा रहा है। अगर वाजोडाइलेशन हो गया और परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इन्फ्लेमेशन हो गई। अगर हम कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे ये इसका फॉर्मेशन बंद हो जाए, तो क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब इसी वाले पे हम ऊपर चलते हैं। जब हमने फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोलाइपेज एक्ट किया, एरेकिडोनिक एसिड बना और उसके आगे बना, तो देखो अलग अलग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होती हैं। स्टीरॉइड आर एंटी इन्फ्लेमेटरीज। ओके, जब भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम स्टीरॉइड देते हैं। क्यों देते हैं? स्टीरॉइड क्या करेगी, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड पे जो फॉस्फोलाइपेज एक्ट कर रही होती है ना, इसको ब्लॉक कर देती है। जब इसको ब्लॉक कर देगी तो ये बनेगा ही नहीं, ये PGD2। उस समय हमें क्या चाहिए कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो हमारे बॉडी में बने जा रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो यहीं पे इससे सारा का सारा प्रोसेस रोक देगी। या
फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है कि दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड, दिस PGD2 और PGE2, अब ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं, COX-1 और COX-2 इनिबिटर देते हैं। तुमने एस्प्रिन का नाम सुना होगा, इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, या फिर जितने भी हम बोलते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो सबसे कॉमन जो यूज होती है वोवरोन, ठीक है। तो दीज ड्रग्स क्या होते हैं, दीज आर, जैसे वोवरोन है वो COX-2 इनिबिटर है, वो कहाँ पे करेगी, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम पे एक्ट करेगी। अगर साइक्लो ऑक्सीजनेज पे एक्ट करेगी तो क्या होगा कि ये जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ड्रग्स होती हैं डेवलप की जाती हैं। COX-2 इनिबिटर्स और स्टीरॉयड का फंक्शन वी शुड, ठीक है। ऐसी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह ल्यूकोट्राइंस होते हैं। ल्यूकोट्राइंस में देखो, इस पे लाइपोऑक्सीजनेज अगर एक्ट करेगी तो ल्यूकोट्राइन A4, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ये सारे के सारे बनते हैं। और ये जो ल्यूकोट्राइंस के जो कुछ जो टाइप्स हैं, दे कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन और इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी, फिर अगेन कि वस्कुलर परमिएबिलिटी को इफेक्ट करेंगे और ब्रोंकोस्पाज्म को क्रिएट करेंगे। इसमें से एंड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ल्यूकोट्राइंस which inhibit the neutrophil additions and chemotaxis। तो जो ल्यूकोट्राइंस ये जो है, अब ब्रोंकोस्पाज्म अगर हो जाए किसी को, और अगर हम ऐसी कोई ड्रग दे दें जो ल्यूकोट्राइंस को और ये इनके अगेंस्ट काम करे या इनकी फॉर्मेशन को बंद कर दे, तो क्या होगा, ये ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा ना। तो दीज ल्यूकोट्राइंस आर फॉर्म फ्रॉम द ल्यूकोसाइट्स, और मास्ट सेल्स जो होते हैं, मास्ट सेल्स में से ये ल्यूकोट्राइंस फॉर्म होती हैं। अगर हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे दें कि मास्ट सेल को ज्यादा ओवर एक्टिवेट होने से रोकें, तो क्या होगा, दीज will not be formed and bronchospasm will not take place। तो इनका जो फिजियोलॉजी से ज्यादा इन्फ्लेमेशन में ज्यादा यूज है ना इन सारी चीजों को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का और ल्यूकोट्राइंस का, तो बेसिकली डिजीज में इनका ज्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का एक यानी शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट यूज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा हो जाएंगी तो पायरेक्सिया होगा। पायरेक्सिया रोकने को कैसे कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का इनिबिशन कर दो। प्रोस्टाग्लैंडिन का इनिबिशन कहाँ पे हो जाएगा, COX-1 COX-2 अगर हम इनिबिटर दे देंगे तो पायरेक्सिया बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, इंडोमिथासिन, ये सारे बंद हो जाएंगे। देन इसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन में अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर यूज्ड फॉर टू प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अगर हम कोई एगोनिस्ट दे दें तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक सकता है, ठीक है। यूट्रस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच आर नॉर्मली तो बनी रही है ना, जब फुल टर्म हो जाता है, when the parturition is about to takes place, उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, सर्विक्स को प्राइम करते हैं, सर्विक्स को प्राइम करके इट कॉजेज द डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स सो दैट द बेबी कैन कम आउट। तो उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स यूज होते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स आर यूज्ड टू फॉर द सर्वाइकल प्राइमिंग, ओके, एंड फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर। बस इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, एक तो पायरेक्सिया में इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसका ये जो पॉजिटिव रोल है इसका, इसके एंटागोनिस्ट पायरेक्सिया में यूज होंगे, एगोनिस्ट यूज होंगे व्हेन वी वांट द डिलीवरी टू अकर, ओके। और ऐसी प्लेटलेट एग्रीगेशन में जो काम कर रहे हो उनके अगेंस्ट जो ड्रग्स होती है एस्प्रिन, ठीक है, अगर उसको दे देंगे तो प्लेटलेट एग्रीगेशन विल नॉट टेक प्लेस, क्लॉट फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस, and the patient will have less chances of myocardial infarction। ल्यूकोट्राइंस मैंने जैसे तुम लोगों को बताया कि
ल्यूकोट्राइन्स यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म में काम करते हैं. So there are certain important kind of drugs which are used in leukotrienes in asthma का एक बार रूल देख लेते हैं. Leukotrienes assist in the pathophysiology of asthma causing the following symptoms. एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. तो अगर हम ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, जो ल्यूकोट्राइन फॉर्म हो रही थी हमारी, ठीक है, या तो उनको कम हो जाए उनका प्रोडक्शन, या इसका एंटागोनिस्ट यूज करते हैं कि उसका रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, फिर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आजकल तुमने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, जब कोविड का ट्रीटमेंट करते हैं तो देयर इज अ ड्रग विच इज नोन एज मॉन्टेलिकोस्ट. मॉन्टेर एलसी के नाम से आती है. मॉन्टेलिकोस्ट इज नाउ, यानी क्योंकि बहुत बार कोविड का ट्रीटमेंट रिवाइव हुआ है, एंड दिस ड्रग वाज क्लिनिकली तो यूज करते हैं. हाउएवर इट इज, चाहे तो WHO उसको बोले या ना बोले, बट on the basis of our experience we do give Montelukast, so that क्या होगा कि bronchial inflammation तो हो ही रही है कोविड के अंदर, ठीक है, एस्मा नहीं है इसमें, लेकिन यह है कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द वेरियस inflammatory molecules which are released because of the virus interaction, ठीक है. So we give this Montelukast drug. It will block the leukotriene receptors. ल्यूकोट्राइन्स होंगी, काम नहीं करेगी इस पे रिसेप्टर पे, और ब्रोंकोस्पाज्म विल नॉट टेक प्लेस. ओके, नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस. आई एम रियली सॉरी, ये वाला टॉपिक ये ऐसी था. अदरवाइज देयर इज जस्ट प्लेन इन्यूमरेशन. अगर हम फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के यूज क्या होते हैं, सेरोटोनिन कहाँ कहाँ पे यूज करता है, सीवीएस में क्या यूज है, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि वी स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ड्रग्स की, क्योंकि बेसिकली हम उसको ड्रग्स की वजह से ही पढ़ते हैं. और मेजर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, दीज एक्ट वाया दीज their mechanism of action is basically dependent on the physiology or pathophysiology of these local hormones. So with this I come to the end of this lecture. It's already 10:30. If there are any doubt, I can take it for another 5 to 10 minutes. So I am unmuting you, all of you. So if there are any doubt, you can ask me. बच्चों लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे एक अमीश सिंह ने पूछा है कि इन विच केस वी गिव थ्रोम्बोक्सिन A2 एगोनिस्ट. जो उसका काम होगा जहाँ पे, अगर हमें थ्रोम्बोक्सिन A2 को देख लेते हैं एक बार. कोई डाउट हो तो बच्चों पूछो मुझसे. हेलो, लेकिन जितना जितना मैंने बताया थाइमस और पीनियल ग्लैंड में, वो तो थोड़ा थोड़ा सा, यानी मतलब आई फाउंड इट अ बिट इम्पोर्टेंट, और थोड़ा फंडामेंटल भी क्लियर हो गया हमारा कि टी सेल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मेलेटोनिन सुप्राकियास्मिक न्यूक्लियस के साथ कैसे सर्काडियम रिदम को बना रही है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन में, एंड ल्यूकोट्राइन्स के मेजर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स. बट आई डोंट थिंक सो दैट these question come to your exams. एक अमीश ने पूछा है कि थ्रोम्बोक्सिन A2 को कहाँ पे यूज करेंगे. बच्चे का अगर बहुत ज़्यादा हमारे को ज़रूरत है कि कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, हालांकि मैंने आई हैवंट सीन एनी थ्रोम्बोक्सिन A2 एगोनिस्ट, ठीक है, एगोनिस्ट नहीं देखा मैंने, यानी मतलब इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो आई हैवंट सीन कि कोई इसको यूज करता है. लेकिन अगर अगर यूज करना पड़ेगा तो कहीं पे अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी, अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर चल रहा है और सेरोटोनिन की कमी है या और किसी चीज की कमी की वजह से वासो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको एक्सटर्नली दे सकते हैं. लेकिन normally it is not used. I worked in ICU for almost 10 years.
आई हैवंट यूज्ड दिस। ओके, इसका एंटागोनिस्ट तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लेटलेट एग्रीगेशन रोकने के लिए एमआई के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों, is there any doubt or should I stop the session so that you can take a rest of whole 25 minutes before your next lecture begins? Should I end? अमीश ने बच्चों बताओ कोई एक मिनट। अमीश एक मिनट बेटे, माइग्रेन में क्या हो रहा होता है, माइग्रेन में जब सर में दर्द हो रहा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा उससे H1 रिसेप्टर की वजह से ही है। वो वाजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, उसको कर देते हैं। लेकिन जब भी हम व्हेन वी आर इन ट्रबल, है ना, जब भी से क्या कहते हैं, माइग्रेन में क्या होता है कि एक बार कास्केड ऑफ इवेंट शुरू हो गया, उसके बाद तो जैसे लाइट होगी, तो लाइट से क्या होगा कि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, इरिटेशन हो रही होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो पीनियल ग्लैंड के थ्रू एक्ट कर रहा है या फिर उसे क्या कहते हैं, ये हिस्टामिन के लेवल को बढ़ा दिया, बट देर इज अ कास्केड ऑफ इवेंट विच आर अकरिंग। जैसे एमआई में क्या हुआ, क्लॉट बनेगा, क्लॉट के बाद क्या हो रहा है, अब जहां पे भी वो क्लॉट जाएगा वहां की पैथोलॉजी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए माइग्रेन itself is a very cluster of symptoms, you can say. So there are no but am I audible? बेटा ये देखो, सारी चीजें मुझे पता है कि ये सिर्फ मैंने सारा का सारा इसमें क्लिनिकल पार्ट को बेटे इसीलिए इंक्लूड कर दिया बिकॉज तुम्हारे को पढ़ाने से पहले मैं खुद खुद कन्विंस नहीं हो रहा था इस सब चीज के लिए कि क्या करूं मैं। ल्यूकोट्राइंस और ये जितना भी अगर तुम बुक में देखोगे ना, एक्शन ऑन सीवियस, सबके एक ही टाइप के एक्शन होते हैं, समझ रहे हो, एक ही टाइप के रिएक्शन होंगे, कंस्ट्रिक्शन करेंगे, वाइजोडाइलेशन करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। उसको समझना उस हिसाब से बड़ा मुश्किल है, इस हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आ गया तुम्हें, बहुत है, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज टेक। और अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा कि कहाँ कहाँ पे उसे क्या कहते हैं, जैसे H1 रिसेप्टर का, जो हिस्टामिन का रिसेप्टर कहाँ पे यूज होता है, इन्फ्लेमेशन, बस, ठीक है। H2 कहाँ पे होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में। तो ये ज्यादा चीजें याद करनी थी, रादर देन इफ आई इन्यूमरेट द एक्शन ऑफ कि सीवीएस पे क्या हो रहा है, जीआईटी पे क्या हो रहा है, सीएनएस पे क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो इसीलिए इसको मैंने इस तरीके से किया है। अभी सारे डिजीज की डिटेल्स में मत जाओ। दी यानी वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है कि सर फीवर क्यों होता है, देयर आर अ नंबर ऑफ, अब तो तुम लोगों को भी पता चल गया कि फीवर वायरल से होता है, कोरोना से भी होता है, एचआईवी में भी होता है, बहुत सारी चीजों से होता है। तो उन सब चीजों में अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसीलिए हमने इतना लंबा कोर्स बनाया। तो 4.5 साल पढ़ने के बावजूद भी जब हम एमबीबीएस की डिग्री ले लेते, सारी चीजें तब भी नहीं क्लियर होंगी। दे विल गेट क्लियर इन व्हेन यू डू द स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन। ओके, तो मेडिसिन इज वेरी वास्ट। थोड़ा थोड़ा समझने का यानी फंक्शन करो, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया नॉर्मल दवाई कैसे यूज करते हैं इस वाले लोकल हार्मोन्स में, और बाकी थाइमस और पीनियल ग्लैंड में समझ में आ गया। दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, so now I am should I end the lecture so that you can rest for another 20 minutes? कोई तो बोल लो यार, लिख तो दो, टाइप तो कर दो। Okay, so get ready for your next lecture at 11 a.m. I'm ending the webinar. Okay.